Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Are you getting me? Hello? Yes, ma'am. Okay, बेटा. श्रुति बेटा अभी आई नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना कोई भी बच्चा. अगर श्रुति अटैच कनेक्ट हो जाती है तो श्रुति भेज देगी, अदरवाइज कोई भी बच्चा भेज देना. सृष्टि. अभी बेटा एडमिट कर लेते हैं 5 मिनट्स तक, उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास. Now you are free from your UT second. फ्री हो गए ना UT सेकंड से? Yes, ma'am. कैसे गए सभी के? मैम अच्छे गए. अच्छे गए? चले, वेरी गुड. बेटा ऑनेस्टली दिए ना? Yes, ma'am. इंग्लिश में किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई किसी को? No, ma'am. ओके बेटा. विच चैप्टर वी विल टेक टुडे? कौन सा लेंगे हम? हेड ड्राइवर ले लें? The head driver. द हेड ड्राइवर. किसका है ये? हमारी फुटप्रिंट्स का है, इसी का टर्न है ना मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के बाद. द हेड ड्राइवर. Hello students, today we will take our chapter The Head Driver from Footprints Without Feet. The narrator of this story is the junior assistant clerk in a law firm. इस स्टोरी का जो नरेटर है वो कौन है? एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क है इन अ लॉ फर्म में. His job was to serve summons. वो क्या करता है? समन्स देने का कार्य करता है. He hated this work. वो इस कार्य से हेट करता है. He does not want to serve summons. He thought of stealing to his aunt town where he could be a lawyer straightway. He wanted to go to his aunt town and where he wanted to be a lawyer. He wanted to start his work a lawyer. Once he was sent to New Mullion, a town 40 miles away, to serve summons on a man called Oliver Lutkins, who was a witness in a lawsuit. Once he went to New Mullion. New Mullion क्या है? A town है which is 40 miles away, and he went there to serve summons to Lutkins, who was a witness in a case. When he reached New Mullion, a delivery man agreed to help him in finding out Lutkins for $2 an hour. He told him that it was difficult to locate Lutkins. However, he said that he knew most of the places where Lutkins might be. This man carried him in his hat and kept him good company for chatting up with him. He told him that Lutkins never parted with his money. He still owed him 50 cents on a poker game. The head driver managed to elicit from the narrator the purpose for which he had come, to serve the summons to Lutkins, and that Lutkins refused to be a witness. Whenever the driver took the narrator, he told him to keep out of sight lest Lutkins should recognize him and slip away. The head driver took the narrator to many places, but wherever he took him, he went in first. The narrator waited for him outside. The driver took him to Fitch, where Lutkins played poker. Then they went to the barber shop and pool room. They missed him everywhere. It was past afternoon when the narrator felt hungry. He was willing to buy the driver lunch bill.
The driver got the lunch prepared by his wife, who charged him $50 for it. They had lunch at the wheat fields. Finally, the head driver drove the narrator into a poor farmyard. This belonged to Lutkin's mother. The driver, on entering, told Lutkin's mother that the narrator had come from the court and wanted to find her son. The mother seized an iron rod and marched on them. She shouted that she would burn them if they searched Lutkin's. The narrator got frightened. However, they searched the house, the stable, the barn, but failed to find Lutkin's anywhere. The narrator had to return to the city. Though he did not succeed in locating Lutkin's, he enjoyed the day thoroughly with the head driver. Next day, the case came up in the court. He was unable to produce Lutkin's in the court. He was ordered to go back to New Mullions, and with him was sent a man who had worked with Lutkin's. The narrator felt very humiliated and shocked to find that the head driver himself was the man they wanted, Oliver Lutkin's. Oliver Lutkin's and his mother laughed at the narrator heartily, and the narrator served the summons to Lutkin's, but not without feeling humiliated and fooled. So we will explain the chapter now. The head driver. The head driver. After graduating with honor, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. The narrator of this story says that when he completed his graduation, he became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. क्या है कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो नरेटर था वो एक लॉ फर्म में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया. I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summons, like a chief private detective. वो क्या कहता है कि नरेटर कि मुझे क्या करने के लिए भेजा जाता था, एक सर समन्स करने के लिए, यानी सर समन्स को देने के लिए भेजा जाता था. नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ, मुझे किसी लीगल काम के लिए नहीं भेजा जाता था. लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, मुझे एक प्राइवेट डिटेक्टिव के समान समन्स देने के लिए भेजा जाता था. आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स. उसको अपनी विक्टिम्स को ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, डर्टी प्लेसेस पर, शैडोई कॉर्नर्स पर जाना पड़ता था अपने विक्टिम्स को समन्स देने के लिए. दैट वाई ही वाज वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान था. ही डज नॉट वांट टू डू, वो ऐसा नहीं करना चाहता. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. वो क्या कहता है कि कुछ बड़े और मोस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति मुझे कभी कभी बीट कर देते थे, यानी मुझे मेरे काम में धोखा दे देते थे, चीट कर देते थे. I hated this unpleasant work. He hated this unpleasant work and the side of the city life it revealed to me. वो क्या करता था, वो सिटी में जाना चाहता था, अपने टाउन में जाना चाहता था और वहां पर सीधा एक लॉयर का काम करना चाहता था. वो इस अनप्लीजेंट वर्क से हेट करता था, यह काम नहीं करना चाहता था. I even considered filling off my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. So I resolved one day when they sent me out 40 miles in the country. One day, so I resolved one day. तो वो कहता है कि एक दिन I was very happy, मैं बहुत खुश था. When they sent me, जब उन लोगों ने, यानी जहाँ पर वो एम्प्लॉय था, जहाँ पर काम करता था, तो उन लोगों ने उसको sent me out, मुझे 40 miles in a country, 40 मील्स की दूरी पर स्थित एक गांव में भेजा. to a town called New Mullions, जिसको कि वो एक टाउन था जिसका नेम न्यू मिलियन था. तो सर समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस, वहां पर मुझे ओलिवर लुटकिंस को समन देने के लिए जाना था. वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस, हमें इस व्यक्ति की एक लॉ केस में विटनेस के रूप में आवश्यकता थी. एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और उसने हमारे सभी लेटर्स क्या कर दिए थे, इग्नोर कर दिए थे. When I got to New Mullions, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. When he reached there, he thought that he will reach in a magnificent country where he will happy. उसने सोचा था कि मैं एक शानदार जगह पर पहुंचूंगा जहां पर जाकर मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी. But when he reached there, जब वो वहां पर पहुंचा, his expectations was not fully according to his wishes. उसकी जो आशाएं थी उसकी विशेष के अकॉर्डिंग नहीं हुई. Its streets were rivers of mud.
with rows of wooden shops, either painted a soft brown or bare of any paint at all. The streets were full of mud. क्या था कि उसकी जो गलियां थी मड से भरी हुई थी, कीचड़ से भरी हुई थी. वहां पर वुडन शॉप्स थी जो कि एक लाइन में लगी हुई थी, रॉ में थी. इधर पेंटेड अ सॉफ्ट ब्राउन, या तो वो सॉफ्ट ब्राउन कलर में थी, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या फिर उन पर कुछ भी पेंट नहीं हुआ था. The only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. वो क्या था कि सबसे ज्यादा एग्रीबल माने जिससे उसे देखने से बहुत ज्यादा खुशी हुई, वो साइट अबाउट द प्लेस, वह स्थान था जहाँ पर कि द डिलीवरी मैन वॉज एट द स्टेशन, जहाँ पर कि डिलीवरी मैन स्टेशन पर था. He was about 40, वो लगभग 40 years का था, रेड फेस था, चेयरफुल था, एंड थिक अबाउट द मिडल, और वो मिडिल से थिक था यानी मोटा था. His working clothes were dirty and well worn. उसके जो वर्किंग क्लोथ थे डर्टी थे, well worn पुराने थे, घिसे हुए थे. And he had a friendly manner, और जो उसकी नेचर थी बहुत ज्यादा फ्रेंडली थी. You felt at once that he liked people. उसे देखकर आप तुरंत यह महसूस करोगे कि वो लोगों को पसंद करता था. I told him to find a man named Oliver Lutkins. मैंने उससे जाकर क्या कहा कि मैं एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, और वो व्यक्ति कौन है? ओलिवर लुटकिंस. ये बात बेटा किसने कही? ये बात नैरेटर ने किसको कही? वो नैरेटर स्टेशन पर पहुंचता है, वहां पर उसे एक डिलीवरी मैन दिखाई देता है जिसके साथ एक कैरेज होती है, एक गाड़ी होती है. तो वो उसी व्यक्ति के पास जाकर कहता है कि वहां पर मैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए आया हूँ. उसे उस व्यक्ति की नेचर बहुत अच्छी लगती है, तो वो उसी के पास जाता है और कहता है कि मैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए आता हूँ. Lutkins, I saw him around here about an hour ago. वो कहता है कि Lutkins, अरे यही 1 घंटे पहले मैंने उसको देखा था. Hard yellow to catch though, always up to something or other. उस व्यक्ति को पकड़ना बहुत कठिन है, कभी तो वो यहाँ पर दिखाई देता है और कभी दूसरे स्थान पर चला जाता है. He is probably trying to start up a poker game in the back of the kid's shop. वो कहता है कि एक व्यक्ति होता है कि वो क्या कहता है कि वो उसकी दुकान के पीछे क्या कर रहा होगा? पोकर गेम खेल रहा होगा. I'll tell you why. Is there any hurry about locating Lutkins? वो कहता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हें लुटकिंस को ढूंढने की कोई जल्दी है? तुम बहुत जल्दी उससे मिलना चाहते हो? Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. वो कहता है कि हाँ, मैं उससे बहुत जल्दी मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वापस जाने वाली 2 आफ्टरनून वाली ट्रेन पकड़नी है. I was very important and secret about it. मैं उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और ये बात उसके लिए बहुत गोपनीय है, यानी मेरे पास उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है और वो उससे सीक्रेट रखनी है और मुझे यह उसे देना है. I'll tell you what, I have got a hack. वो कहता है कि मैं बताऊँ, मेरे पास एक हैक है. हैक मीन्स एक गाड़ी है. I'll get it out and we can drive around together and find Lutkins. वो कहता है कि मैं अभी तुरंत इस गाड़ी को ले आता हूँ और हम दोनों लुटकिंस को ढूंढ लेंगे. आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट. वो कहता है कि मैं उन स्थानों को जानता हूँ, उन बहुत से सारे स्थानों को जानता हूँ जहाँ पर कि हमें वो मिल सकता है. वो वहाँ पर लटका रहता है, मीन्स अटका रहता है, किसी काम के बहाने से वो वहाँ पर मिल जाता है. He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. वो इतना ज्यादा ओपन माइंडेड था, मतलब किसी बात में हेजिटेशन नहीं करता था, इतना ज्यादा फ्रेंडली था कि आई ग्लोड विद वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, कि मैं उसके अफेक्शन को देखकर, इसके प्रेम को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ. ग्लोड विद वार्मथ यानी चहक उठा. आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल. मैं जानता था कि वो बिजनेस चाहता था. बिजनेस कैसे चाहता था? बिकॉज ही वाज अ हेड ड्राइवर. वो एक हेड ड्राइवर था और मैं क्या था, उसका एक क्या था, पैसेंजर था. वो चाहता था कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं. उससे वो क्या होगा, उसको मनी अर्न होगी. वो मैं जानता था कि उसकी यही भावना है, वो यही चाहता है. लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा, उसकी काइंडनेस से बहुत ज्यादा खुश हुआ क्योंकि उसकी काइंडनेस जो थी रियल थी. आई वॉज ग्लैड द शेयर मनी वो गो टू दिस गुड फेलो. मैं खुश था कि मुझे जो किराया देना है वो इस अच्छे व्यक्ति को चला जाए तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. I managed to bargain down to $2 in an hour. मैंने उससे बार्गेनिंग की और मैंने कहा कि मैं 1 घंटे के $2 दूंगा. And then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. फिर वो अपने घर से ही, उसका घर पास में ही था, वहां से एक लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, पहियों पर चलने वाला यानी छोटी सी एक गाड़ी ले आया. He remarked, उसने कहा, well young man, here is the carriage, ये गाड़ी है. And his wide smile made me into an old friend.
और जो उसने स्माइल मुझे दी उससे मुझे एक अपने परिचित फ्रेंड की याद आ गई। दिस विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। और मैंने अपने आप मन में सोचा कि ये जो विलेजर्स हैं ये एक स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए कितना ज्यादा तैयार रहते हैं। He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. उसने तो खुद ही मुझे ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए वो खुद ही एग्री हो गया, तैयार हो गया। He said, उसने कहा, I don't want to interfere, young fellow, I don't want to interfere. मैं तुम्हारी किसी बात में इंटरफेयर करना नहीं चाहता, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम लुटकिंस से कुछ पैसे लेने के लिए, कुछ मनी कलेक्ट करने के लिए आई हो। He never pays anybody a cent. वो किसी का भी उधार लिया हुआ पैसा नहीं देता, वो किसी को कोई रुपया वापस नहीं करता। He still owes me 50 cents on a poker game. वो मेरे भी उसके पास 50 सेंट्स हैं, उसने पोकर गेम में लिए थे। I was fool enough to play with him. मैं तो उसके साथ खेलकर मूर्ख बना। He is not really bad. वास्तव में वो बैड नहीं है, but it is hard to make him part with his money. लेकिन उसके मनी में उसका सहयोगी बनना यानी उससे पैसे लेना बहुत ज्यादा कठिन है। If you try to collect from him in those fancy clothes, और अगर तुम उनसे आप इतने फैंसी क्लॉथ में पैसे कलेक्ट करने की सोचोगे, he will be suspicious. उसे तुम पर संदेह हो जाएगा and get away from you. और वो तुमसे दूर भाग जाएगा। If you want, I'll go into Fritz and ask for him. अगर तुम चाहो तो मैं फ्रिट्ज के पास जाऊंगा और उससे पैसे मांगूंगा। And you can उसके बारे में मैं फ्रिट्ज के पास जाऊंगा, उसकी शॉप पर जाऊंगा और मैं उससे लुटकिंस के बारे में पूछूंगा। And you can keep out of sight behind me. और तुम पीछे से मेरे ऊपर आउट ऑफ साइट, कीप आउट ऑफ साइट यानी दृष्टि रख सकते हो, नजर रख सकते हो कि मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। I loved him for this. मुझे इससे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आया, यानी मैं सोचने लगा कि वो अपने आप ही मेरे लिए इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए तैयार हो रहा है। By myself, I might never have found Lutkins. मैंने सोचा कि अपने आप तो मैं लुटकिंस को कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। With the head driver's knowing help, I was sure of getting my man. और उस हेल्प ड्राइवर की हेल्प के द्वारा मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. मैंने उसे अपने कॉन्फिडेंस में लिया और मैंने उसे बता दिया कि मैं लुटकिंस के लिए समन लेकर आया हूँ। That the man had refused to be a witness. कि उस व्यक्ति ने एक विटनेस बनने से मना कर दिया। When his information would have quickly settled our case. जब उसकी इंफॉर्मेशन क्या है कि उसने मना कर दिया विटनेस बनने के लिए, जबकि उसकी इंफॉर्मेशन से हमारा जो केस था वो बहुत जल्दी सेटल हो जाता। द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली। ड्राइवर ने मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर। और अंत में उसने मेरे शोल्डर पर हिट किया एंड लाफ और हंसने लगा। वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज। ठीक है, हम ब्रदर लुटकिंस को सरप्राइज देंगे, आश्चर्यचकित करेंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। वो कहता है कि चलिए स्टार्ट करें ड्राइवर। मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन। वो क्या कहता है कि मोस्ट फॉक्स अराउंड, अधिकांश लोग, फॉक्स लोग, बिल मुझे क्या कहते हैं, बिल और मैग्नुसन कहते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। वो अपना बिजनेस बताते हैं कि मेरा जो बिजनेस है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। और राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज। वो कहता है कि क्या हम फ्रिज की शॉप पर चलें, उसकी तरफ चलें। यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। वो कहता है कि लुटकिंस वहां पर हमें मिल ही जाएगा। प्लेस अ लॉट ऑफ पोकर, क्योंकि वो पोकर गेम खेलता है। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल। वो लोगों को धोखा देने में बहुत ज्यादा अच्छा है। बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस। ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल लुटकिंस की प्रशंसा कर रहा हो, उसके टैलेंट की फॉर डिसऑनेस्टी, और उसकी डिसऑनेस्टी के लिए उसके टैलेंट की प्रशंसा कर रहा हो। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन he would have caught Lutkins respectfully. मैंने महसूस किया कि if he had been a policeman, कि अगर वो एक पुलिसमैन होता तो he would have caught Lutkins respectfully. तो वो फिर लुटकिंस को रिस्पेक्टफुली क्या करता है, अरेस्ट करता। वो कहता है कि मैंने अपने लिए महसूस किया कि अगर मैं एक पुलिसमैन होता तो मैं लुटकिंस को बहुत ज्यादा सम्मान के साथ उसको अरेस्ट करता एंड जेल हिम विद रिग्रेट। और मुझे रिग्रेट होता उसको जेल में डालने के लिए, क्योंकि जो ये दूसरा जो ड्राइवर है जो उसके साथ था बिल मैग्नुसन, वो क्या था कि वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और वो लुटकिंस की बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा था। किस बात की, उसकी डिसऑनेस्टी की। तो वो कहता है कि अगर मैं पुलिस वाला होता तो मैं उसको बहुत सम्मान के साथ रिस्पेक्ट करता और मुझे रिग्रेट होता कि इतने डिसऑनेस्ट व्यक्ति को मैं जेल में डाल रहा हूँ।
और बिल लेड मी इनटू फ्रिज, बिल मुझे फ्रिज की शॉप पर लेकर गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, और उसने कहा कि क्या तुमने आज ओलिवर लुटकिंस को कहीं देखा है? फ्रेंड ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम, उसका कोई फ्रेंड उसको ढूंढ रहा है। सैड बिल क्लियरली, बिल ने कहा। फ्रिज लुक एट मी, फ्रिज ने मुझे देखा। हाइडिंग बिहाइंड बिल, बिल के पीछे छिपे हुए उसने मुझे देख लिया। ही हेजिटेटेड, उसने हेजिटेशन की। एंड देन एडमिटेड यस ही वाज इन हियर अ लिटिल व्हाइल अगो, उसने क्या कहा कि कुछ समय पहले वो यही था। Yes, he has gone over to Gustav to get a shave. हो सकता है कि वो अभी गुस्ताव के पास शेविंग कराने के लिए गया हो। Well, if he comes in, tell him I am looking for him. वो कहता है कि ठीक है, अगर वो आए तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। We drove to Gustav's barber shop. इसके बाद हम गुस्ताव बार्बर की शॉप पर गए। Again, Bill went in first. दोबारा से बिल पहले आगे गया। As he प्रॉमिस विद मी, जैसे कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं पहले जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें देखकर लुटकिंस वहां से भाग जाए, तो वो पहले गया। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं डोर पर ही खड़ा रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द शेविंग बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस, उसने मुझे केवल